Hello everyone, I am Radhika. Welcome to Chapter Hunt. In today's video, we will cover Class 7 Science Chapter 11 Transportation in Animals and Plants. This is part 3 video of this chapter. Please go through part 1 and part 2 videos before watching this if you have not watched them earlier. Chapter Hunt aims to give you two-fold benefits. One, to clear the concepts of your chapter. And second, to provide you with question and answers which can be asked in your examination. So keep learning and score good marks. In this video, we will be covering the two main topics left from this chapter. That is the excretory system in humans and the transportation of substances in plants. So let's get started. Now the question says, explain the excretory system in humans. So let us first read the answer and then at the end I'll give you the explanation. Urea is a major waste product produced in our body. The urea and other unwanted salts dissolve in water in the body to form a yellowish liquid waste called urine. The excretory system collects the urine and removes it. The excretory system of human beings consists of the following organs: 2 kidneys, 2 ureters, a bladder, and a urethra. Kidneys. These are called the magic filters. Kidneys are bean-shaped organs present at the back of our body, just above the waist. The waste which is present in the blood has to be removed from the body. Blood constantly passes through our kidneys. When the blood reaches the 2 kidneys, it contains both useful and harmful substances. Filtration of blood is done by the blood capillaries in the kidneys. The liquid left in the kidneys is a yellowish liquid called urine, which contains urea, other waste salts, and excess water. The next part is ureters. Ureters are a pair of tubes which pass the urine formed in the kidneys to the urinary bladder. The urinary bladder is a small muscular balloon-like organ which swells up when full of urine. It shrinks in size after urine is expelled out. The last is urethra. Urethra is the tube which allows the passage of urine. The urine is stored in the urinary bladder for some time and at regular intervals it is removed through urethra. A healthy human being passes about 1.5 to 2.5 liters of urine every day. ठीक है, तो अब हमने इसमें क्या समझना है कि हमारी बॉडी में से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन जो यूरिया, एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट्स रिमूव होते हैं वो कैसे करे जाते हैं. ठीक है, दैट मीन्स यूरिनरी सिस्टम विच इज एन एक्सक्रीटरी सिस्टम बाय विच आवर बॉडी रिमूव्स एक्सेस वाटर, यूरिया एंड सॉल्ट्स. ठीक है, यूरिया आपने पढ़ा था लास्ट में, हमने समझा था लास्ट वीडियो में कि यस यूरिया इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि एक्सक्रीट करा जाता है बाय किडनीज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. यूरिया बनता है लिवर में एंड इट इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. ठीक है, अब कंपोनेंट्स आपने पढ़े इसमें हमारे यूरिनरी सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या इन्वॉल्व होता है इसमें. 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. ठीक है, अब ब्लड में वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है, उसको बाहर निकलना है. हमारा जो ब्लड है वो कॉन्टिन्यूसली किडनीज में से पास होता रहता है एंड इन किडनीज में होगा फिल्ट्रेशन. ठीक है, क्योंकि इन किडनीज में जब ब्लड आता है इट हैज बोथ द यूजफुल वाला मटेरियल भी एंड harmful substances भी. Then what do our kidneys do? किडनीज फिल्टर करती हैं ब्लड को. कैसे? समझो जैसे कि आपके घर में वाटर फिल्टर प्यूरिफायर लगा हुआ है, वो पानी को फिल्टर कर देता है ना, डर्ट हट जाती है और आपको क्लीन वाटर मिलता है. इन द सेम वे आवर ब्लड विल एब्जॉर्ब जो भी था
और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को किडनीज बाहर निकाल देंगी। जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी हमारी ब्लड ने यूज़ कर ली उसको, और जो टॉक्सिक हार्मफुल सब्सटेंसेस थी वो क्या करेंगी किडनीज, इट विल मिक्स देम विद एक्सेस वाटर, जो ज़्यादा जो हमारी बॉडी को पानी नहीं चाहिए, एंड मेक यूरिन। ठीक है, लाइक आपके पास आपने आज बहुत सारा पानी पिया, ठीक है, यू हैड अ लॉट ऑफ वाटर, इसमें से बॉडी सेल्स ने यूज़ किया जितना पानी उनको चाहिए था फॉर फंक्शनिंग, रेस्ट एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब किडनीज ने ब्लड प्यूरिफाई किया, ठीक है, एंड वेस्ट मिक्स हुआ विथ वाटर। अब क्या होगा, इन दोनों किडनी से एक ट्यूब के थ्रू कॉल्ड यूरेटर, ठीक है, यूरेटर्स क्या हैं, दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करती हैं। ठीक है, तो जब किडनीज ने ब्लड को प्यूरिफाई किया और जो वेस्ट मिक्स हुआ वाटर वो यूरेटर की थ्रू से पहुंच जाएगा हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर रहता है जब तक आप जाके यूरिन पास आउट नहीं करते हैं। ठीक है, एंड फाइनली यूरेथ्रा से, जो कि एक ओपनिंग है, यूरिनरी ओपनिंग है, वहां से आप यूरिन को एक्सपेल आउट कर देते हो। इस तरह आपकी बॉडी से यूरिन रिमूव हो जाता है। ठीक है, सो अगर आप अलग अलग समझना है कि अगर आपको फंक्शंस पूछे जाएं तो किडनी का फंक्शन क्या है, ब्लड से वेस्ट को और एक्सेस वाटर को फिल्टर करती हैं एंड यूरिन बनाती हैं। यूरेटर्स क्या हैं, ट्यूब्स हैं जो कि किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट कर रही हैं। यूरिन किडनी से ब्लैडर तक कैसे पहुंचता है, यूरेटर्स की हेल्प से ही। और यूरिनरी ब्लैडर क्या है, जहाँ पे यूरिन स्टोर रहता है, जो प्रोड्यूस हुआ यूरिन ये वहाँ तक जब तक स्टोर रहेगा जब तक आप यूरिन पास आउट नहीं करेंगे। एंड यूरेथ्रा क्या है, एक ओपनिंग जहाँ से आप यूरिन एक्सपेल्ड हो जाता है बाहर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, इफ किडनीज आर डैमेज्ड, how do you think the waste products will be removed from the body? The normal functioning of the kidney is necessary for good health of a person, but sometimes the kidney may stop working due to infection or injury. This condition of kidney is called kidney failure, which may lead to the accumulation of urea in the blood of a person. Accumulation मतलब store हो जाना, इकट्ठा हो जाना। Since urea is a toxic means harmful substance which must be removed from the blood, such person having kidney failure cannot survive unless his blood is filtered periodically through the artificial kidney machine to remove the urea. This process of cleaning the blood of a person by separating the waste product urea from it is called dialysis. This machine removes urea and other waste products periodically. Since a kidney machine can do the work of damaged kidney, therefore, kidney machine is sometimes also called artificial kidney. The long-term solution for the patient suffering from kidney failure is kidney transplantation. In this method, the diseased or damaged kidney is removed and matching kidney is donated by a healthy person. The donated kidney is transplanted in its place by performing surgery. तो डायलिसिस क्या होता है, यू मस्ट हैव हर्ड कभी कि किसी का किडनी डैमेज हो गया या किडनी ख़राब हो गई। अब क्यों हो जाता है, कभी या तो कोई इन्फेक्शन हो गया हो या कोई इंजरी हो गई हो, तो किसी भी इसी वजह से अगर कभी किसी इंसान की किडनी काम करना बंद कर देती है तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। वाई, आपको पता है ना, बिकॉज अभी हमने क्या पढ़ा, किडनीज में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर कौन करता है, उन्हीं का फंक्शन है ये। तो जब अब आपका किडनी डैमेज हो गई तो ये फिल्ट्रेशन कैसे होगी, और अगर फिल्ट्रेशन नहीं होगी तो होगा क्या, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारी ब्लड में एक्यूमुलेट, इकट्ठे हो जाएंगे, एंड ड्यू टू दिस इट्स डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू सर्वाइव। तो ऐसे लोगों को क्या कराना पड़ता है, डायलिसिस। होता क्या है, इसमें एक मशीन की मदद से आर्टिफिशियली ब्लड को फिल्टर करा जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। मतलब जो काम किडनी करती है वो एक मशीन करके देती है, पूरे ब्लड को फिल्टर करने का काम।
तो इसलिए कभी कभी हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये क्या काम, डायलिसिस वाली जो मशीन है उसको हम बोलते हैं कि एक ही आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं इसको। और कई बार अगर इससे भी नहीं होता है तो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ही होता है, जिनका किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो उनको किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए एडवाइस किया जाता है। बट इट इज़ नॉट अ वेरी ईजी प्रोसेस, ये एक सर्जरी करी जाती है इसमें, एंड आपको एक हेल्दी डोनर मिलना चाहिए जो कि किडनी आपको डोनेट करता है, एंड इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव मेथड ऑल्सो। बट जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट अगर कभी किसी पेशेंट का है किडनी फेलियर का, तो वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एक्सक्रीशन इन अदर एनिमल्स। Like humans, animals also excrete waste products from their body. The way in which waste materials are removed from the body of the animal depends upon the availability of water. Aquatic animals like fishes excrete ammonia as their waste product. This ammonia is excreted in the gaseous form which directly gets dissolved in water. The land animals like lizards, birds, snakes, etc. have less water available to them. These animals excrete a white colored waste called uric acid in a semi-solid form. And urea is the excretory product of animals like human, cow, goat, etc. and is eliminated as urine. ये आपने पढ़ा था अभी। तो एक्वाटिक एनिमल्स जैसे कि फिश हैं, वो कैसे एक्सक्रीट करती हैं, उनका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, एमोनिया। एमोनिया कैसे एलिमिनेट होता है उनकी बॉडी से, थ्रू गिल्स, ठीक है। उसी तरह से जैसे कि अगर आपका लिजर्ड्स, बर्ड्स, स्नेक्स, मतलब जो भी लैंड एनिमल्स हैं, उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, वो है यूरिक एसिड। क्योंकि जो यूरिक एसिड होता है ना, उसमें इट हैज़ लो सॉल्युबिलिटी एंड इट रिक्वायर्स लेस वाटर फॉर एक्सक्रीशन। एंड हमारा जो ह्यूमन, काउ, गोट, उनमें अभी हमने पढ़ा था कि यूरिया इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और वो कैसे एलिमिनेट होता है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, how does transport of food and water occur in plants? Plants are living organisms and they need water, minerals and food for their survival. Plants do not have specialized organs and organ system for transport of substances. They do have specialized tissues for the same. A tissue is a group of cells performing a common function. The tissues responsible for transport of substances within the plant are called vascular tissues. There are two types of vascular tissues, xylem and phloem. Xylem. Plant root absorbs the water and minerals from the soil. The roots have root hair, which increases the surface area of the root for absorption of water and mineral nutrients that is dissolved in water. The root hair is in contact with the water present between the soil particles. Xylem is a tube or vessel-like tissue with no cross walls. This is responsible for transport of water from roots up to the stem and leaves. The xylem forms a continuous network of channels that connect roots to the leaves through the stem and branches, and thus transports water to the entire plant. And phloem, during photosynthesis, leaves prepare food required by all parts of the plant. The food has to be transported to all parts of the plant. This is done by the vascular tissue called the phloem. Phloem cells are thin, valved and living. Now, transportation of substances in plants, a very important question from this chapter. We know plants make food through photosynthesis. और आपने पढ़ा हुआ है photosynthesis में क्या क्या चाहिए, what all is required. photosynthesis कैसे होता है plants में, in the presence of sunlight, carbon dioxide and water and minerals. Sunlight तो sun से मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई, फ्रॉम एयर, और वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से आए, वाटर एंड मिनरल्स आए सॉइल से। सॉइल में जो रूट्स होते हैं, जो उनके हेयर होते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स। अब इन सब चीज़ों की मदद से बनता है प्लांट्स का खाना। और कहाँ पे बनता है प्लांट्स का खाना, वी नो फूड फैक्ट्री क्या होती है प्लांट्स की, लीव्स। अब जो क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि सॉइल
में से जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो तो एब्जॉर्ब हो गए, अब उसको जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे करा जाता है। अब रूट से ये जो ऊपर की तरफ पूरे प्लांट में ये वाटर एंड मिनरल्स कैसे आएंगे, क्योंकि अब फोटोसिंथेसिस के बाद जैसे कि अब पहले तो आप ये सोचो कि अगर आपने जो पानी है और वाटर है जो आपने मिट्टी में डाला वो रूट्स ने एब्जॉर्ब किया, तो एक तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो रूट्स ने एब्जॉर्ब किया वाटर और मिनरल्स ये रूट्स तक ही रहता है या ऊपर तक जाएगा, ऊपर तक तो जाएगा तभी तो लीव्स खाना बनाएंगी, तो ये कौन पहुंचाएगा। उसके बाद जब लीव्स ने खाना बनाया जो कि क्या है समझ लो आप प्लांट्स की किचन है, तो जब लीव्स ने खाना बनाया तो फिर वो खाना पूरा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक कैसे पहुंचा, ये दोनों चीज़ों को आपने समझना है, ठीक है। नाउ प्लांट्स की रूट्स सॉइल में जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब कर लेती है, रूट्स में होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर और वही ये वाटर और मिनरल को मिट्टी में से एब्जॉर्ब करती हैं, तो ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन। अब ऊपर तक इसको ट्रांसपोर्ट करता है एक वेसल जो कि जिसका नाम है जाइलम, ठीक है। तो जैसे आपने पढ़ा था कि ह्यूमंस में आपने सारा कुछ पढ़ा, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ा आर्टरीज वेन्स सबका अलग अलग काम होता है, सेम उसी तरह से प्लांट्स में ये वाला काम जो कि वाटर और मिनरल को ऊपर तक पूरे प्लांट तक पहुंचाने का काम कौन सी वेसल करती है, जाइलम। तो ये भी मतलब इसका मतलब हमने क्या समझा कि प्लांट्स में भी ह्यूमन की तरह प्रेजेंट होते हैं पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, लीव्स से जो खाना बना वो जो है वो सिर्फ लीव्स तक तो ही नहीं रहेगा ना, वो पूरे प्लांट को मिलना चाहिए, तो वो जो फूड लीव्स ने बनाया उसको प्लांट के पूरे पार्ट तक लेके जाने का काम दूसरा टिश्यू करता है जो कि है फ्लोएम, और ये भी एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो जैसे आपकी बॉडी में आर्टरीज वेन्स कैपिलरीज सबके अपने अपने फंक्शन होते हैं, प्लांट में यू हैव टू रिमेंबर द ट्रांसपोर्टेशन दो चीज़ें हेल्प करती हैं वेसल्स, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम ट्रांसपोर्ट करती हैं वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है आपका फूड मटेरियल, ठीक है। Now, the next question says, does transpiration serve any useful function in the plant? Explain. तो transpiration क्या है? Plants absorb minerals, nutrients and water from the soil. Not all the water absorbed is utilized by the plant. The water evaporates through the stomata present on the surface of the leaves by the process of transpiration. The continuous evaporation of water from the leaves produces an upward pull called as suction force. This force pulls the water from the roots upward through the stem, branches and finally to the leaves. Significance क्या है इसका? It creates a suction pull which helps to draw water to a great height in a tall tree. It produces cooling effect on the plant and therefore prevents the plant from the damage caused by the heat of sunlight. It helps the plant to get rid of excess water. It also helps in the transport of water and minerals to the leaves for performing photosynthesis in them. Transpiration. Now, from our body we remove excess water कैसे? In the form of urine. Similarly, plants में से भी excess water को remove करने के process को हम बोलते हैं transpiration. And now we'll study कैसे. Now, you know leaves have small openings on them. हमने पढ़ा हुआ है ये पहले, क्या बोलते हैं leaves की small openings को? We call them stomata. इन्हीं स्टोमेटा से एक्सेस वाटर इवापोरेट हो जाता है। इस इवापोरेशन से क्या होगा, आपका एक फोर्स क्रिएट होता है, ठीक है। जब आपका लीव्स के स्टोमेटा से एक्सेस पानी इवापोरेट हो गया उसकी वजह से क्या होगा, एक फोर्स क्रिएट होगा और इस फोर्स की वजह से एक सक्शन पुल, एक ऊपर की तरफ पानी खींचा जाता है। इसका मतलब तभी जो नीचे से जो पानी है जो आपने सॉइल में पानी दिया वो ऊपर खींच के आ गया। देखो अभी हमने पिछले लास्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल के रूट्स ने एब्जॉर्ब करा और जो जाइलम टिश्यू है उसने ये सारा पूरे
प्लांट्स की पार्ट्स को पहुंचा दिया। बट आपने ये सोचा कि ये होता कैसे है? कोई नीचे मोटर या मशीन तो लगी नहीं हुई ना कि पानी खींच के ऊपर चला जाएगा। ये होता है ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन की वजह से एक सक्शन पुल, एक फोर्स क्रिएट हो जाता है जिससे कि ये पानी ऊपर की तरफ खींचता है। टेक फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ग्लास में जूस, दूध, मिल्क कुछ भी लिया, यू आर ड्रिंकिंग विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉ। नाउ यू सक इट फ्रॉम द टिप, ऊपर से आप सक करते हो तो क्या होगा, जूस पाइप से ऊपर आने लगेगा क्योंकि एक फोर्स क्रिएट हो गया जो जूस को ऊपर खींच रहा है। सिमिलरली इन प्लांट्स, जब लीव्स से ट्रांसपीरेशन हुआ, वाटर का लॉस हुआ, ट्रांसपीरेशन का मतलब वाटर का लॉस हुआ, तो एक फोर्स क्रिएट हुआ और इसी फोर्स की वजह से पानी ऊपर की ओर आके खींचने लगा। ठीक है, तो बेसिकली प्लांट्स में क्या हुआ, एक ट्रांसपीरेशन पुल क्रिएट हुआ जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ आ जाता है। ठीक है, सो नाउ दिस ब्रिंग्स टू एन एंड ऑफ आवर साइंस क्लास 7 चैप्टर 11. आई होप you liked it. If you found this helpful, make sure to hit the like button. Also share it with somebody who you think this could help. Please hit the subscribe button and notification bell to be notified every time I upload new video. I'll see you soon. Till then, take care. Bye-bye.